अमेरिका के मशहूर पत्रकार और पूर्व CNN एंकर डॉन लेमन को फेडरल एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को ट्रंप प्रशासन और प्रेस की आजादी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या हुआ, कैसे हुई पूरी गिरफ्तारी, जानिए पूरा मामला। 18 जनवरी 2026 को अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में एक चर्च के अंदर ICE, जो कि एक इमिग्रेशन एजेंसी है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान चर्च की प्रार्थना सभा बाधित हुई। प्रदर्शनकारियों ने चर्च को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि उसके एक पादरी का ICE से भी संबंध बताया जा रहा है। और यह विरोध उस समय हुआ जब ट्रंप प्रशासन के कड़े सीमा बल रवैये के कारण 2 लोगों की अमेरिका में मौत हो गई। और इन सब चीजों के कारण अमेरिका में विरोध और गहराता जा रहा है। लेमन, जो अब एक स्वतंत्र पत्रकार माने के फ्रीलांस जर्नलिस्ट जिन्हें कहा जाता है के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां लाइव स्ट्रीमिंग की, वीडियो रिकॉर्ड किए, प्रदर्शनकारियों और चर्च के लोगों का बारी बारी से इंटरव्यू किया और बार बार लगातार कहते रहे कि वे पत्रकार के रूप में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ना कि एक प्रदर्शनकारी के रूप में। तो जानिए आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई। ट्रंप सरकार के न्याय विभाग, जिसे कि DOJ कहा जाता है, का आरोप है कि चर्च में बाधा डाली गई, धार्मिक आजादी में दखल हुआ और फेडरल कानून का उल्लंघन हुआ। सरकार का कहना है कि डॉन लेमन सिर्फ रिपोर्टर नहीं बल्कि घटना का हिस्सा बन गए। अब इसमें बात ये आती है कि ट्रंप का रोल आखिर कहां से आया। I have spent my entire career covering the news. I will not stop now. In fact, there is no more important time than right now, this very moment, for a free and independent media that shines a light on the truth and holds those in power accountable. Again, I will not stop now. I will not stop ever. Last night, the DOJ sent a team of federal agents to arrest me in the middle of the night for something that I've been doing for the last 30 years, and that is covering the news. The First Amendment of covering the news. The First Amendment of the Constitution protects that work for me and for countless of other journalists who do what I do. I stand with all of them, and I will not be silent. I look forward to my day in court. Thank you all. Lemon, my husband created CNN, and I will fight for their right to speak, which is guaranteed in our Constitution. They arrested the wrong Don. We have to fight to protect our rights. Many of our fathers and grandfathers fought and died for these rights, and we are not ready to sit and be quiet. We have to speak up. Every American who believes in our Constitution has to speak up. Don Lemon is a professional journalist. He and his producer were doing their job. Nothing more, nothing less. And he's been arrested. And they'll make up all kinds of defamatory things to say about him. That's what they're doing. And they'll make up all kinds of defamatory things to say about him. That's what they're doing. This is how autocrats act. We can't fall for it. We have to speak up. When a red line is crossed like this, we cannot be silent. Authorities have arrested former CNN anchor Don Lemon for his involvement in a protest earlier this month at a Minnesota church. His lawyer said on Friday he was arrested in Los Angeles by FBI and Homeland Security investigations agents. Lemon, who live-streamed a demonstration that interrupted a church service protesting President Donald Trump's immigration crackdown, was charged with conspiring to deprive others of their civil rights.
and violating a law that forbids obstructing access to houses of worship. A person familiar with the matter said Lemon had been under FBI surveillance for days prior to his arrest. Attorney General Pam Bondi, in a post on X, said Lemon was among 3 others arrested in connection to what she called a, quote, coordinated attack. Lemon's lawyer called his arrest a, quote, unprecedented attack on the First Amendment, referring to the U.S. Constitution's guarantees of freedom of speech and of the press. The move occurred just over a week after a federal magistrate judge declined to issue an arrest warrant for Lemon. House Minority Leader Hakeem Jeffries spoke about the situation to reporters Friday. Trump administration has systematically targeted the free and fair press because they want to intimidate America and oppose anyone who is not willing to bend the knee to their extremism. We are not going to be intimidated at all. The free and fair press is central to the foundation of American democracy. This is a pretty unusual situation. Amy Kristen Sanders is a First Amendment Studies professor at Penn State University, who says the Justice Department's actions should disturb everyone in the U.S., not just journalists. I think what we're seeing is a really terrifying development. Anytime we see the government taking action against journalists who are doing their job, the public should be concerned. There's no doubt that arrests like these are designed to chill freedom of expression, designed to intimidate protesters and journalists who are covering what's happening in Minnesota. Under Trump, the DOJ has regularly tried to prosecute a succession of critics and perceived opponents of the president. It unsuccessfully sought to prosecute former FBI Director James Comey and New York Attorney General Letitia James, who both led investigations into Trump. Earlier this month at a Minnesota church. Federal authorities have arrested former CNN anchor Don Lemon for his involvement in a protest earlier this month at a Minnesota church. His lawyer said on Friday he was arrested in Los Angeles by FBI and Homeland Security investigations agents.
Lemon, who live-streamed a demonstration that interrupted a church service protesting President Donald Trump's immigration crackdown, was charged with conspiring to deprive others of their civil rights and violating a law that forbids obstructing access to houses of worship. A person familiar with the matter said Lemon had been under FBI surveillance for days prior to his arrest. Attorney General Pam Bondi, in a post on X, said Lemon was among 3 others arrested in connection to what she called a, quote, coordinated attack. Lemon's lawyer called his arrest a, quote, unprecedented attack on the First Amendment, referring to the U.S. Constitution's guarantees of freedom of speech and of the press. The move occurred just over a week after a federal magistrate judge declined to issue an arrest warrant for Lemon. House Minority Leader Hakeem Jeffries spoke about the situation to reporters Friday. Trump administration has systematically targeted the free and fair press because they want to intimidate America and oppose anyone who is not willing to bend the knee to their extremism. We are not going to be intimidated at all. The free and fair press is central to the foundation of American democracy. This is a pretty unusual situation. Amy Kristen Sanders is a First Amendment Studies professor at Penn State University, who says the Justice Department's actions should disturb everyone in the U.S., not just journalists. I think what we're seeing is a really terrifying development. Anytime we see the government taking action against journalists ट्रम्प who are प्रशासन doing their job, पहले से ही the public should be कड़े इमिग्रेशन concerned. कानून There's no doubt that ICE arrests like these को are खुली designed छूट to chill और freedom of प्रदर्शनकारियों पर designed सख्ती के to लिए intimidate जाना जाता है। protesters and इसी नीति के journalists who are खिलाफ covering what's अमेरिका happening में कई in राज्यों में Minnesota. विरोध चल Under रहे हैं। Trump, the DOJ has regularly मामले tried में to prosecute a एक बड़ा succession मोड़ of critics and तब आया perceived opponents of the जब president. एक फेडरल जज ने My husband पहले ही created पर्याप्त सबूत CNN, न होने and I के will कारण fight for their पत्रकार right के to खिलाफ speak, गिरफ्तारी which is वारंट guaranteed in our देने से इनकार कर Constitution. दिया था। लेकिन They arrested the ट्रम्प सरकार wrong के Don. अभियोजकों ने ग्रैंड जूरी से We केस have to आगे बढ़ाया fight to protect और our फिर rights. गिरफ्तारी करवाई। Many of our fathers and grandfathers इस मामले fought में and died डॉन for लेमन का these rights. साफ कहना है, And we वो ये are कह not रहे हैं ready to sit कि and मैं be quiet. प्रदर्शनकारी नहीं We था, have to speak up. मैं Every पत्रकार के American तौर पर who believes काम in कर our रहा था। Constitution has to speak उनके up. वकील ने Don Lemon कहा है कि यह प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है और पत्रकारों को डराने की कोशिश है। Nothing less. तो आखिर ये मामला And he's इतना been बड़ा arrested. क्यों है? And they'll सवाल make ये up उठ रहा है all कि kinds of क्या defamatory ट्रम्प things to say सरकार about him. That's पत्रकारों what पर they're doing. दबाव बना रही This is- है? And they'll make क्या up रिपोर्टिंग all को kinds अपराध of बनाया जा रहा defamatory है? things to say about क्या him. यह That's प्रेस what they're फ्रीडम doing. बनाम This सत्ता is की how लड़ाई है? autocrats act. We can't fall for it. कई मीडिया We have to संगठन speak और up. मानवाधिकार समूह When इस a red गिरफ्तारी line की is निंदा crossed कर like रहे this, हैं। we cannot be silent. Will not. I डॉन spent लेमन my की entire गिरफ्तारी career अब covering सिर्फ the एक news. कानूनी मामला I will नहीं not बल्कि stop अमेरिका now. में मीडिया की आजादी की परीक्षा बन There is चुकी है। no more important time than right now. लेमन के This वकील very और moment प्रेस for a आजादी free के and independent समर्थक media इस that कदम shines a को light on the संवैधानिक truth and आजादी holds those in power पर accountable. Again, I will not stop now. I will not टेंटेड stop ever. अनप्रेसिडेंटेड जिसकी मिसाल Last न दी night, जा the सके, DOJ sent a जिसका team ये of मतलब federal होता है कि agents जो to पहले arrest me कभी in the हुआ middle न of the हो, night न देखा for गया हो, something न that सुना I've been गया हो, doing for ऐसा the अनहर्ड last हमला बता 30 रहे years, हैं and that is और covering the news. आरोप लगा The रहे First हैं Amendment कि of ट्रम्प शासन पत्रकारों को चुप कराने और विवादों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने इस घटना को एक समन्वित हमला बताया है और कहा है कि लेमन और अन्य लोगों ने धार्मिक गतिविधियों और नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया। बहरहाल लेमन और उनके वकील एबी लोवेल ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, वे सिर्फ पत्रकार के तौर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। यह सभी गतिविधियां संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं क्योंकि यह प्रेस की आजादी, फ्री स्पीच और जानकारी तक पहुंच के अधिकार से जुड़ी हुई हैं। लोवेल ने इस गिरफ्तारी को पत्रकारिता की आजादी पर असामान्य हमला बताया है और कहा है कि लेमन तो बस वही कर रहे
लोवेल ने इस गिरफ्तारी को पत्रकारिता की आजादी पर असामान्य हमला बताया है और कहा है कि लेमन तो बस वही कर रहे थे जो पत्रकारों का काम है। उधर समर्थक प्रशासन का कहना है कि धार्मिक सेवाओं में बाधा डालने पर कार्रवाई जरूरी थी। जैसे जैसे यह मामला अदालत में आगे बढ़ेगा, यह सिर्फ एक पत्रकार के खिलाफ मामला नहीं बल्कि आजादी, नीति और शक्ति के बीच एक बड़ा टकराव बन चुका है। पत्रकार संघों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम की निंदा की है, चेतावनी दी है कि इससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग का माहौल रिपोर्टिंग कर रहे थे। यह सभी गतिविधियां संवैधानिक रूप से सुरक्षित है क्योंकि यह प्रेस की आजादी, फ्री स्पीच और जानकारी तक पहुंच के अधिकार से जुड़ी हुई है। लोवेल ने इस गिरफ्तारी को पत्रकारिता की आजादी पर असामान्य हमला बताया है और कहा है कि लेमन तो बस वही कर रहे। लोवेल ने इस गिरफ्तारी को पत्रकारिता की आजादी पर असामान्य हमला बताया है और कहा है कि लेमन तो बस वही कर रहे थे जो पत्रकारों का काम है। उधर समर्थक प्रशासन का कहना है कि धार्मिक सेवाओं में बाधा डालने पर कार्रवाई जरूरी थी। जैसे जैसे यह मामला अदालत में आगे बढ़ेगा, यह सिर्फ एक पत्रकार के खिलाफ मामला नहीं बल्कि आजादी, नीति और शक्ति के बीच एक बड़ा टकराव बन चुका है। पत्रकार संघों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम की निंदा की है, चेतावनी दी है कि इससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग का माहौल ठंडा पड़ सकता है। आज स्थिति यह है कि लेमन फिलहाल फेडरल हिरासत में है और जल्द ही अदालत में पेश होंगे। उनके वकील कानूनी लड़ाई को जारी रखने का वादा कर रहे हैं। जैसे जैसे इस मामले में नई जानकारियां सामने आएंगी, यह सिर्फ एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमे से कहीं आगे संवैधानिक अधिकारों की कसौटी बनकर उभर रहा है। इस मामले में आखिरी सवाल तो यह है कि क्या अमेरिका में प्रेस आजाद है या आजादी अब सरकार की इजाजत पर है। आज डॉन लेमन हथकड़ी में है और क्या कल सच हथकड़ी में होगा? क्या ट्रंप सरकार अब ये तय करेगी कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं? और यह वही ट्रंप सरकार है जो रूस और चीन पर प्रेस दबाने के आरोप लगाती आई है। तो आज क्या अमेरिका भी उसी लाइन में खड़ा है? अगर कानून के हिसाब से बात की जाए तो एक सवाल जो उठता है वो यह है कि जज ने वारंट क्यों रोका? जब पर्याप्त सबूत नहीं थे तो अरेस्ट का क्या आधार था? इसका क्या यही मतलब निकलता है कि क्या ट्रंप सरकार को आलोचना से एलर्जी है? अगर किसी भी पत्रकार को इस तरह रिपोर्टिंग ग्राउंड से गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर प्रेस कार्ड क्यों? उसकी मान्यता क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि डॉन लेमन CNN जैसे प्लेटफॉर्म के बहुचर्चित एवं जाने पहचाने एंकर रहे हैं। वे कोई बैकएंड कर्मचारी नहीं है, वे एक जाने माने चेहरा है। इसका दूसरा सिरा यह भी है कि अगर डॉन लेमन ट्रंप समर्थक होते तो क्या तब भी गिरफ्तारी होती? अगर अमेरिका जैसे देश में जहां फ्रीडम को सुपीरियर माना जाता है में प्रेस का भविष्य इतना अंधेरा है तो क्या अगला पत्रकार आप होंगे? क्या ट्रंप सरकार में अब रिपोर्टिंग सरकार की अनुमति से होगी या ट्रंप को आलोचना बर्दाश्त ही नहीं है? आज डॉन लेमन पर केस है, कल पूरे मीडिया पर हो सकता है। सीधा सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका में प्रेस आजाद है या सत्ता की मेहरबानी पर जिंदा? अगर जज ने
वारंट से मना किया था, तो गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई? क्या ग्रैंड जूरी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हुआ? रिपोर्टिंग आखिर अपराध कब से बन गई? अगर चर्च में प्रदर्शन गलत था, तो पत्रकार को क्यों पकड़ा गया? तो क्या ट्रंप सरकार पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाह रही है कि सवाल मत पूछो, कि सवाल मत पूछो? अमेरिका के मशहूर पत्रकार और पूर्व CNN एंकर जॉन लेमन को फेडरल एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को ट्रंप प्रशासन और प्रेस की आजादी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या हुआ, कैसे हुई पूरी गिरफ्तारी, जानिए पूरा मामला। 18 जनवरी 2026 को अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में I've spent my entire चर्च के career अंदर covering the news. ICE जो कि I एक will इमिग्रेशन not एजेंसी है, stop उसके now. खिलाफ विरोध प्रदर्शन In शुरू fact, हुआ। प्रदर्शन के There is दौरान no more important चर्च time की than प्रार्थना right सभा बाधित हुई। now, this very moment, for a free and independent प्रदर्शनकारियों media ने that shines a चर्च light को निशाना on the truth इसलिए and holds बनाया those in power क्योंकि उसके accountable. एक पादरी का Again, I will not stop ICE now. से I will not stop ever. संबंध बताया जा रहा है। Last night, और the यह DOJ विरोध sent a उस team समय of हुआ federal agents to जब arrest ट्रंप me in the middle of the प्रशासन night के for something that I've कड़े been सीमा बल doing रवैये for के the कारण last 2 30 लोगों years, की and that is अमेरिका covering में the मौत हो news. गई। The First Amendment of the इन Constitution सब protects that work चीजों के for कारण me and for अमेरिका में countless of विरोध other और journalists गहराता जा रहा है। who do what I do. I stand लेमन with all of them. जो अब And I will एक स्वतंत्र not पत्रकार माने be silenced. कि I फ्रीलांस look जर्नलिस्ट forward जिन्हें to my कहा day जाता in है court. कि Thank रूप you में all. काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ My husband लाइव स्ट्रीमिंग की, created वीडियो CNN, रिकॉर्ड किए, and I will fight for their प्रदर्शनकारियों right और to चर्च के speak, लोगों का बारी which बारी is से guaranteed इंटरव्यू in our किया Constitution. और बार-बार लगातार They कहते arrested रहे the wrong कि Don. वे पत्रकार के रूप में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, We have to ना fight कि to एक protect our प्रदर्शनकारी rights. के रूप में। Many of our fathers and जानिए grandfathers आखिर fought गिरफ्तारी and क्यों हुई? died for these rights. ट्रंप And we सरकार are के not न्याय ready to विभाग sit and be जिसे quiet. कि DOG कहा We have जाता to है, speak up. DOJ Every कहा जाता है, American का who आरोप है believes in our कि Constitution has चर्च to में speak up. बाधा डाली गई, Don Lemon धार्मिक आजादी में is a दखल हुई professional journalist. He और and फेडरल his कानून का producer were उल्लंघन doing हुआ। their job. Nothing सरकार का more, कहना है nothing less. कि जॉन लेमन सिर्फ And he's been रिपोर्टर नहीं arrested. And they'll make बल्कि up घटना का all हिस्सा बन kinds गए। of defamatory things to अब say about इसमें him. बात That's ये what they're आती है कि doing. ट्रंप का This रोल is- आखिर and they'll make कहाँ से आया? up all kinds of defamatory things to say यह about कार्रवाई him. That's what they're डोनाल्ड ट्रंप doing. के This is how दोबारा autocrats act. राष्ट्रपति बनने के बाद हुई। We can't fall ट्रंप for it. प्रशासन We पहले have से to ही speak up. कड़े इमिग्रेशन कानून, When a red line is ICE, crossed like this, we खुली cannot छूट be और silent. प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के लिए जाना जाता है। this month at a इसी नीति के Minnesota खिलाफ church. अमेरिका His में कई राज्यों में विरोध चल Federal रहे authorities हैं। have arrested former CNN मामले anchor में Don Lemon एक for बड़ा his मोड़ involvement in a तब आया protest earlier this जब month at a एक Minnesota फेडरल जज church. ने His पहले lawyer said on Friday he पर्याप्त was सबूत arrested in Los न होने Angeles के by कारण FBI and पत्रकार के Homeland खिलाफ Security investigation गिरफ्तारी agents. वारंट देने Lemon, से who इनकार कर live दिया था। streamed a demonstration that लेकिन interrupted a church service ट्रंप सरकार के protesting President Donald अभियोजकों Trump's ने immigration crackdown, ग्रैंड was जूरी से charged with केस आगे conspiring to बढ़ाया deprive others और of their फिर civil rights गिरफ्तारी and करवाई। violating a law that forbids इस obstructing मामले में access to housing. जॉन लेमन का साफ Person कहना है, familiar with the वो ये matter कह said रहे Lemon हैं had been under कि मैं FBI surveillance for प्रदर्शनकारी days नहीं prior था, to his arrest. मैं पत्रकार Attorney के तौर General Pam पर Bondi काम in a कर रहा post था। on X said Lemon was उनके among वकील 3 ने others arrested in कहा connection है to what कि she यह called प्रेस की quote, आजादी पर coordinated सीधा attack. हमला है Lemon's और lawyer called पत्रकारों it को not- डराने की कोशिश I है। spent my entire career तो covering आखिर the ये news. मामला I इतना will बड़ा not क्यों है? stop सवाल ये now. उठ रहा है कि क्या In fact, ट्रंप सरकार There is no पत्रकारों more पर important दबाव time बना than रही है? right now, क्या रिपोर्टिंग this को very अपराध moment, बनाया for जा a रहा free and है? independent media क्या यह that प्रेस shines a फ्रीडम light बनाम on the सत्ता truth की and लड़ाई holds है? those in power accountable. Again, I will not stop now. I will not stop ever. पत्रकारों Last पर night, the दबाव बना रही DOJ है? sent a team of federal क्या agents to रिपोर्टिंग arrest me in the को middle of the अपराध night बनाया जा रहा है? for something that I've क्या been यह doing प्रेस फ्रीडम for बनाम the सत्ता की लड़ाई last है? 30 years, and that is covering the news. The कई First Amendment मीडिया of the संगठन और Constitution मानवाधिकार protects that work समूह for me इस गिरफ्तारी and for की countless निंदा of कर other रहे हैं। journalists who do what I do. जॉन I लेमन की stand with गिरफ्तारी all of them, अब सिर्फ and एक I will कानूनी not मामला नहीं be बल्कि silent.
अमेरिका में forward to my day मीडिया in की court. आजादी की Thank you all. परीक्षा बन चुकी है। लेमन के वकील और प्रेस आजादी के समर्थक इस कदम को संवैधानिक आजादी पर अनप्रेसिडेंटेड जिसकी मिसाल न दी जा सके, जिसका ये मतलब होता है कि जो पहले कभी हुआ ना हो, न देखा गया हो, न सुना गया हो, ऐसा अनहर्ड हमला बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप शासन पत्रकारों को चुप कराने और विवादों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने इस घटना को एक समन्वित हमला बताया है और कहा है कि लेमन और अन्य लोगों ने धार्मिक गतिविधियों और नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया। बहरहाल लेमन और उनके वकील एबी लोवेल ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, वे सिर्फ पत्रकार के तौर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। यह सभी गतिविधियां संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं क्योंकि यह प्रेस की आजादी, फ्री स्पीच और जानकारी तक पहुंच के अधिकार से जुड़ी हुई है। लोवेल ने इस गिरफ्तारी को पत्रकारिता की आजादी पर असामान्य हमला बताया है और कहा है कि लेमन तो बस वही कर रहे। लोवेल ने इस गिरफ्तारी को पत्रकारिता की आजादी पर असामान्य हमला बताया है और कहा है कि लेमन तो बस वही कर रहे थे जो पत्रकारों का काम है। उधर समर्थक प्रशासन का कहना है कि धार्मिक सेवाओं में बाधा डालने पर कार्रवाई जरूरी थी। जैसे जैसे यह मामला अदालत में आगे बढ़ेगा, यह सिर्फ एक पत्रकार के खिलाफ मामला नहीं बल्कि आजादी, नीति और शक्ति के बीच एक बड़ा टकराव बन चुका है। पत्रकार संघों और अधिकारी कार्यकर्ताओं ने इस कदम की निंदा की है, चेतावनी दी है कि इससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग का माहौल ठंडा पड़ सकता है। आज I have spent my entire career covering the news. I will not stop now. In fact, आज there is no स्थिति more यह है important time कि than लेमन right now. फिलहाल This फेडरल very हिरासत moment में है for a और free जल्द and ही independent media अदालत में that पेश shines a होंगे। light on the उनके truth and वकील holds those in कानूनी power लड़ाई को accountable. Again, I will not stop जारी now. रखने I का will not वादा stop कर रहे ever. हैं। जैसे जैसे इस मामले में नई जानकारियां सामने आएंगी, यह सिर्फ एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमे से कहीं आगे संवैधानिक अधिकारों की कसौटी बनकर उभर रहा है। इस मामले में आखिरी सवाल तो यह है कि क्या अमेरिका में प्रेस आजाद है या आजादी अब सरकार की इजाजत पर है। आज डॉन लेमन हथकड़ी में है और क्या कल सच हथकड़ी में होगा। क्या ट्रंप सरकार अब ये तय करेगी कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं। और यह वही ट्रंप सरकार है जो रूस और चीन पर प्रेस दबाने के आरोप लगाती आई है। तो आज क्या अमेरिका भी उसी लाइन में खड़ा है। अगर कानून के हिसाब से बात की जाए तो एक सवाल जो उठता है वो यह है कि जज ने वारंट क्यों रोका। जब पर्याप्त सबूत नहीं थे तो अरेस्ट का क्या आधार था। इसका क्या यही मतलब निकलता है कि क्या ट्रंप सरकार को आलोचना से एलर्जी है। अगर किसी भी पत्रकार को इस तरह रिपोर्टिंग ग्राउंड से गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर प्रेस कार्ड क्यों, उसकी मान्यता क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि डॉन लेमन CNN जैसे प्लेटफॉर्म के बहुचर्चित एवं जाने पहचाने एंकर रहे हैं। वे कोई बैक एंड कर्मचारी नहीं हैं, वे एक जाने माने चेहरा हैं। इसका दूसरा सिरा यह भी है कि अगर डॉन लेमन ट्रंप समर्थक होते तो क्या तब भी गिरफ्तारी होती। अगर अमेरिका जैसे देश में जहां फ्रीडम को सुपीरियर माना जाता है में प्रेस का भविष्य इतना अंधेरा है तो क्या
अगला पत्रकार आप होंगे? क्या ट्रंप सरकार में अब रिपोर्टिंग सरकार की अनुमति से होगी? या ट्रंप को आलोचना बर्दाश्त ही नहीं है? आज डॉन लेमन पर केस है, कल पूरे मीडिया पर हो सकता है। सीधा सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका में प्रेस आजाद है या सत्ता की मेहरबानी पर जिंदा? अगर जज ने वारंट से मना किया था तो गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई? क्या ग्रैंड जूरी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हुआ? रिपोर्टिंग आखिर अपराध कब से बन गई? अगर चर्च में प्रदर्शन गलत था तो पत्रकार को क्यों पकड़ा गया? तो क्या ट्रंप सरकार पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाह रही है कि सवाल मत पूछो, कि सवाल मत पूछो? And they'll make up all kinds of defamatory things to say about him. That's what they're doing. This is how autocrats act. We can't fall for it. We have to speak up. When a red line is crossed like this, we cannot be silent.